Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 5 for the class 11th. And since we are discussing the unit equilibrium, and in the previous video lectures we had discussed the equilibrium with reference to the reversible physical processes. So, my dear students, today we are going to discuss the chemical equilibrium. That means the equilibrium that is established in the reversible chemical processes, we call such an equilibrium as chemical equilibrium. So actually we are going to use the concept of equilibrium in chemical reactions, chemical processes, but they should be reversible. These things are already clear. So today's topic, let's discuss it. So what do you mean by chemical equilibrium, my dear students? The chemical equilibrium, which is established in the reversible chemical processes is known as chemical equilibrium. This is a very simple concept. If the equilibrium is established in a reversible but a chemical process, not a physical process, we call such an equilibrium as chemical equilibrium. In order to understand the concept of chemical equilibrium, we have given a simple general chemical reaction, that is A plus B. Reversible process means gives forward, backward, double-headed arrow, gives C and D. My dear students, these two substances which I have wrote over on the left hand side, these are the reactants, and my dear students, these are the products. So these are reactants, these are products, and in between them I have put two arrows which are pointing towards each other, one towards the product side, another towards the reactant side. So first of all, this is a reversible process that is clearly understood by these two arrows. So this arrow, these two arrows tell you that this is a reversible process, and second, I have assumed that it is a chemical process. So in this process, a stage will come, a time will reach when the equilibrium will be established, and we will call that equilibrium as chemical equilibrium. So before moving ahead, I am going to read this definition again, that chemical equilibrium means the equilibrium which is established in the reversible chemical processes. We call that equilibrium as chemical equilibrium, my dear students. Now in order to understand it, I have taken the simplest एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल केमिकल रिएक्शन मीन्स जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स है और माय डियर स्टूडेंट्स सी एंड डी जो है प्रोडक्ट्स है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स सपोज ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स. तो ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स है और सी एंड डी जो है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स है. देखिए ध्यान से इस चीज को आप सीखिए. इनिशियली क्या होगा, यानी कि जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगा तो एट स्टार्ट में ऐसे लिखूंगा, एट स्टार्ट यानी कि जब मुझे रिएक्शन स्टार्ट करनी होगी, एट स्टार्ट रिएक्शन विल स्टार्ट. तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम अभी रिएक्शन हुई नहीं, यानी कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होगी. एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन जो ए एंड बी की होगी, जो हमारी रिएक्टेंट्स है, उस टाइम जो रिएक्टेंट्स की माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन होगी मैक्सिमम. मैंने जितनी भी ली होगी माय डियर स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम होगी. और उस टाइम पे मैं इसको लिखूंगा एट स्टार्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स मींस एट स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड yet, and in the beginning means in the beginning the concentration of reactants whatever it is the maximum. At that time reaction has not yet taken place, therefore the concentration of products will be definitely equivalent to 0 because अभी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ. अब क्या है, जब केमिकल रिएक्शन अब स्टार्ट होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी. वो इसलिए कम होने लगेगी बिकॉज अब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो आपका सी एंड डी है. सो द प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स कंबाइन to form products, that is C and D, that reaction is called as a forward reaction. तो आपकी ये रिएक्शन जो मैंने ऊपर वाला एरो दिखाया है, जिसका मैंने एरो जो है वो C and D की तरफ दिखाया, सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ये है जिसमें रिएक्टेंट्स A and B कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट जो है उसे C and D बनाते हैं. तो धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ने लगेगा तो A and B जो है वो
आपस में मिलेंगे, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होती जाएगी और आप देखोगे धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट्स की है C&D वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ that during the process of a reaction, when the reaction will proceed onwards, the concentration of reactants will start decreasing while the concentration of products will start increasing, because ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, C&D बना रहे हैं, और जितना जितना C&D बन रहा है उतना उतना इसकी कॉन्सेंट्रेशन डियर स्टूडेंट्स कम होगी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए रिएक्शन A and B, the concentration of A and B will start decreasing while the concentration of C and D will start increasing. But since this is a reversible reaction, so therefore C and D, that means the product has a back tendency to react with each other and to form A and B back. Means that's why we call this as a reversible process. And I will say that this process is a backward reaction. This is a backward reaction. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, याद रखिए आप, हालांकि ये आपको आगे भी पढ़ना है। जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन की, माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में बात करेंगे, रेट मतलब कि रिएक्शन की स्पीड से जा रही है, याद रखिए आप एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, directly proportional to the concentration, rather we can say molar concentration. ये चीजें आप बाद में सीखोगे, as directly proportional to the molar concentration of substances. देखिए मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। सबस्टेंसेस यहाँ पे दो टाइप्स है डियर स्टूडेंट्स, एक है रिएक्टेंट्स, दूसरे है प्रोडक्ट्स। और रेट जहां तक की बात आप करोगे, इसका मतलब है यहाँ पे दो रेट्स होगी, बिकॉज यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रही है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, उससे आपको ये क्लियर होता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। दूसरी बात, इसका मतलब है कि रेट्स यहां पे दो होगी, एक होगी फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी होगी बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपको बताऊं, सिंस मैंने आपको पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट में ये क्लियर किया दैट एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब अगर मान लो आप फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रेट फॉरवर्ड, RF मींस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उस टाइम सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस को डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जाता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखा जाता है। रिएक्टेंट ए को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा जो है दैट इज रिएक्टेंट बी, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। मैं आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन एक बात याद रखिए, वॉल्यूम यहां पे लीटर्स में होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ मोल्स एक सबस्टेंस के आपने डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर वॉल्यूम में, तो उसको हम कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी होगी, वो ए लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दिस इज मीन बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे चेक करोगे दैट अगर मैं यहां पे RF, व्हाट इज RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं इक्वालिटी साइन में चेंज करूंगा तो वहां पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, आई विल राइट KF। K is called as a rate constant and KF means rate constant for the forward reaction। और बाद में जो आपके मोलर कॉन्सेंट्रेशन A and B है वो वैसे ही है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपको पता है इनिशियली जब मैंने एड स्टार्ट किया उस टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ क्या होगी। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगी अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे, इनके प्रोडक्ट पे। तो सिंस आपको पता है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दोनों की मैक्सिमम है, इसका मतलब है इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा होगी। लेकिन उस टाइम अभी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की नहीं बनी है, दैट मींस 0 है, तो उस टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, 0। तो दैट मींस इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अभी नहीं होगी।
लेकिन धीरे धीरे जब रिएक्शन प्रोसीड आगे करेगा तो सी एंड डी भी बनना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है अब सी एंड डी की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज होने लगेगी, लेकिन ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। बिफोर कि मैं आपको वो चीजें समझाऊं, फिलहाल मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, वो मैंने लिखा आर बी। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं दैट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। एक रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे, जो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा उसी पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब मुझे बताइए जरा, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो अगर मुझे एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर मुझे बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेंसेस। इस टाइम आपको सबस्टेंसेस प्रोडक्ट लेने हैं, बिकॉज आपको बैकवर्ड जाना है, तो ये आपके उस टाइम ओरिजिनल बनेंगे। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वो मैं ऐसे लिखूंगा एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी वो मैं ऐसे लिखूंगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डियर स्टूडेंट्स हम एक्टिव मास से भी जानते हैं, इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं। अगर कहीं पे एक्टिव मास लिखा है या मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, दैट मींस वन एंड द सेम थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास मींस नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स एक सब्सटेंस के आपने 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व किए हैं, वो उस सब्सटेंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। आप देखिए दूसरी बात, यहां पे आइए आप, चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज कीजिए। सो आर बी विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने इक्वालिटी साइन में चेंज किया, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ कांस्टेंट अगेन, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा के बी। के इज अ रेट कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, के जो मैंने लिखा इट्स अ रेट कांस्टेंट, यानी कि किस रेट से रिएक्शन जा रही है, और एफ का मतलब है फॉरवर्ड प्रोसेस, बी का मतलब है बैकवर्ड प्रोसेस। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम सी और यहाँ पे लिखेंगे हम डी। देखिए इस चीज को समझिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। अब सॉरी फिलहाल ये रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस है एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस फिलहाल के लिए। अब समझो ये दो एक्सप्रेशन है, इसको आप ऐसे नाम याद रखो। मैंने क्या कहा, अब मैं फिर से इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा इनिशियली concentration of reactants मैक्सिमम है at time t is equal to 0 seconds, मींस जब स्टार्ट हुई रिएक्शन और उस टाइम अभी प्रोडक्ट्स नहीं बने, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 0। लेकिन उस टाइम क्या होगी, उस टाइम अगर हम रेट देखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी वेरी लार्ज बिकॉज द concentration of reactants is very large, and at that moment of time concentration of products is 0, therefore rate of backward reaction will be equal to 0. But as the time will pass, as the time will proceed, what will happen? More and more reactants will start reacting with each other and more products will be formed. Means with the passage of time, the concentration of reactants will start decreasing while the concentration of products will start increasing. Since the rate of a reaction depends upon the concentration of reactants and the concentration of products, that means with the passage of time, rate of forward reaction will start decreasing, whereas rate of backward reaction will start increasing. And at one moment of time, when the rates of both the processes will become equal, we say that time, my dear students, the equilibrium has attained. तो आप मुझे बताइए कि पहले क्या होगा, तो मैं चलो ऐसे लिखूंगा as time will start, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, जब टाइम इंक्रीज होगा, when time will start increasing, कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन किनकी डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, डेफिनेटली वो कम होगी। क्यों होगी डिक्रीजेस? बिकॉज धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड हेंस जब कॉन्सेंट्रेशन ही इनकी कम होगी, एंड हेंस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड हेंस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। सबको समझ आया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिंस रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे, इसीलिए उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रही है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे जब टाइम इंक्रीज होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन, मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, क्योंकि धीरे 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 जब टाइम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनेगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज एंड हेंस रेट ऑफ, अब देखो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन लिखोगे कि बैकवर्ड, therefore rate of backward reaction will increase, बिल्कुल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये फिर बाद में ग्राफ में भी समझाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ दैट पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम है, या आप कह सकते जीरो है। धीरे धीरे फिर जब टाइम आगे बढ़ने लगता है, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है आगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होने लगेगी, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होने लगेगी, व्हाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रही है, इसका मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है। तो एक कम हो रहा है, देखिए आप देखिए, ये मान लो ये रिएक्टेंट्स है, इनकी रेट सबसे ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की रेट पहले क्या थी, कम थी, क्या जीरो थी। अब इनिशियली रिएक्टेंट्स ज्यादा थे इसलिए रेट भी ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स बने ही नहीं थे इसलिए रेट जीरो थी, लेकिन विद द process of a reaction, when the reaction proceeds, concentration of reactants start decreasing, therefore their rate will also decreasing, but the concentration of products start increasing, therefore their rate will also start increasing. So see what will happen at one moment of time, when the stage will reach, when the time will reach, when the rate of forward reaction will become is equal to the rate of backward reaction। आप देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक अलाइनमेंट पे है, इसका मतलब है इस स्टेज पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आया। सो equilibrium is that state where rate of forward process will be equivalent to the rate of backward process. That means इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे जितने नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी के मिलेंगे आपस में और सी एंड डी बनाएंगे, सी एंड डी वापस मिला के वापस कंबाइन होके ए एंड बी को बनाएंगे, एज सच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विल नॉट चेंज। आई एम गोना डू इट इन अ मोर इलॉबरेटिव प्रोसेस, मैं आपको यहां पे क्लियर करूंगा। देखिए बाद में हम वो लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वल टू बैकवर्ड प्रोसेस। मैं कहना क्या चाह रहा था, मान लो इनिशियली मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो थी इसकी मान लो 100 थी, मान लो मैं एक वैल्यू दे रहा हूं 100, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0 थी। धीरे धीरे आपने देखा रिएक्शन जब प्रोसीड हुई तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, जाहिर सी बात है कम होगी बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसका मतलब है ये कम होने लगेगा ये वैल्यू और ये बढ़ने लगेगा। बताओ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पहले क्या थी डियर स्टूडेंट्स 100, और बताओ प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। चेक कीजिए, मैं इरेज करूंगा। उस टाइम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो थी माय डियर स्टूडेंट्स वो 0 थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। अब देखो जब रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी। देखिए मान लो ये 100 से 80 पहुंच गया, और मान लो ये 0 से जो है ये, चलो मैं 0 नीचे ही लिखता हूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं 0 यहां पे लिखता हूं बिकॉज ये 0 है और ये अपर लिमिट है, लोअर है। और मान लो ये 0 से 20 तक पहुंच गए। देखिए मान लो ये अब 80 से फॉर एग्जांपल 60 तक पहुंच गए, और मान लो ये 20 से 40 तक पहुंच गए। देखिए अब मान लो यहाँ पे या आप ऐसे करो, एक एक करके हम करते हैं, अगर हम एक एक वैल्यू लिखेंगे 10 के हिसाब से वो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 थी और मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो 0 थी। देखिए 0, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। मान लो ये 100 से 90 बन रहा है, और मान लो ये 0 से 10 बन रहा है। मान लो ये 100 से अब बन रहा है 80, देखिए बहुत सिंपल है। और मान लो ये बन रहा है 20, सबको समझ आ रहा है। मान लो इसकी कम होगी और इसकी बढ़ रही है। मान लो अब ये 70 इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन रही है, और मान लो ये 30 बन रही है। देखिए इसके बाद ये 60 बन रहा है, और मान लो ये 40 बन रहा है। मान लो इसके बाद ये 50 बन रहा है, और मान लो यहाँ पे भी 50 बन रहा है। देखिए मैं आपको ये अब यहाँ पे ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। मेरा कहना ये नहीं है कि इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 50 रहेगी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 50 रहेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
depends upon the molar concentration of reactants and rate of backward reaction depends upon the molar concentration of products. Since the concentration of reactants has started decreasing with the passage of time, therefore rate of a reaction. देखो concentration of reactants is decreasing. मैं यहाँ पे लिखूंगा concentration of reactants decreasing. Therefore rate decreases. मैंने वो तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, concentration of products is increasing, therefore rate of backward reaction is increasing, and at one moment of time which we call as equilibrium point, मैं उसको कहूंगा at t is equal to t equilibrium, यानी कि एक ऐसा टाइम आया, इक्विलिब्रियम आया, और जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आया मैंने उसको लिखा टी इक्विलिब्रियम, यानी कि उस टाइम पे जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आया आई विल कॉल दैट टाइम एज टी इक्विलिब्रियम. माय डियर स्टूडेंट्स बताओ एट इक्विलिब्रियम क्या है? एट इक्विलिब्रियम सर रेट अब जितनी फॉरवर्ड प्रोसेस की होगी उतनी ही बैकवर्ड प्रोसेस की भी होगी, बिकॉज ये कम होगा, ये बढ़ गया, और एक स्टेज ऐसा आया कि दोनों की रेट इक्वल हो गई. सो एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो आई विल इरेज दिस, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए कहा था. At t is equal to t equilibrium, I will say rate of, चलो मैं ऊपर लिखता हूं, at t is equal to t equilibrium means कि equilibrium attain हुआ है. बताओ क्या होगी डियर स्टूडेंट उस टाइम? rate of forward reaction में ऐसे लिखूंगा is equivalent to the rate of backward reaction. I hope सबको ये समझ आ रहा है. Rate of forward reaction is equivalent to the rate of backward reaction. ठीक है ना? That doesn't mean their concentration is exactly equal. हो भी सकता है but it is not necessary. But their rate is definitely equal. तो बताओ rate of forward reaction किसके बराबर है? Rate of forward reaction आपको इसके बराबर है. चलो मैं इसको इक्वेशन A नाम देता हूँ और इस वाली को इक्वेशन B नाम देता हूँ. बताओ rate of forward reaction किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर आर एफ इज इक्वल टू, चलिए, इज इक्वल टू के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. बताइए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होती है? तो दैट इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू, चलिए मैं पहले ऐसे लिखता हूं उसके बाद हम इसको इलॉबरेट करेंगे. चलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? फिलहाल आर एफ के बराबर इज इक्वल, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? आर बी के बराबर. अब बताइए आर एफ किसके बराबर है? वो इसके बराबर. तो आर एफ के बजाय क्या लिखेंगे अब? के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, बताइए आर बी किसके बराबर है? तो वो है बराबर के बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी. सबको समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. दिस इज वेरी सिंपल. व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction, only then we say that the equilibrium has attained, my dear. So when the equilibrium has attained, and we come to this expression, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए kf क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. what is kf? kf is a rate constant. It is a rate constant. kf is a rate constant for forward reaction. Simple. Kf is the rate constant for forward reaction, and what is Kb? I'm not talking about Rf and Rb. Rf is the rate of forward reaction. Rb is the rate of backward reaction, and at equilibrium they will be equal. I have make you understood. But Kf and Kb की मैं बात कर रहा हूँ. Kf is a rate constant for forward reaction. जितना Kf का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी ही फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा तेजी से होगी. जितना Kb का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से होगी. तो K actually is the rate constant. Rate means speed. तो इसको मैं लिखूंगा rate constant for backward reaction. Simple. अब देखिए इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम क्या है? अब इक्विलिब्रियम पे सर ये कंडीशन है. एट इक्विलिब्रियम द कंडीशन इज दिस, जो क्या सामने है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब देखिए यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. Kf इज आल्सो कांस्टेंट, Kb इज आल्सो कांस्टेंट. इनको मैं एक साइड ले आता हूं. देखिए क्या मैं लिख सकता हूं नीचे Kf और इसको मैं डिवाइड करूंगा यहां से, दैट इज Kb.
KF डिवाइडेड बाई KB इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैंने इससे डिवाइड किया और ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं वहां से लूंगा, लेकिन वहां से क्या है ऑलरेडी, वहां से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? देखिए अब व्हाट इज KF? सर इट इज अ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज KB? इट इज अ रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, at constant temperature, both KF and KB will have fixed values। जो भी होंगे, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, लेकिन जो भी होगा वो वैल्यूज फिक्स्ड रहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंज होती है, यानी कि बेसिकली वहां पे रेट कांस्टेंट चेंज होता है। तो रेट कांस्टेंट जो होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट। तो जब आप दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, क्या करो या डिवीजन करो, टू कांस्टेंट्स विल अगेन गिव अनदर कांस्टेंट। तो इन दो कांस्टेंट्स के बजाय मैं एक ही कांस्टेंट लिखूंगा एंड वो मैं लिखूंगा कैपिटल K ऐसे। दिस इज कैपिटल K, देखिए यहाँ पे। सो इन दो के बजाय मैंने एक बड़ा K लिखा, इट्स आल्सो कांस्टेंट। सो दिस K इज बेसिकली इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कैपिटल K है दैट इज इक्वल टू KF डिवाइडेड बाय KB। The ratio of two rate constant gives this constant. At what state, my dear students? At equilibrium state. We call this constant as equilibrium constant. तो बताओ equilibrium constant किसके बराबर है? This is an expression for equilibrium constant. तो बताओ equilibrium constant किसके बराबर है? आप प्लीज खुद ही आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इसका मतलब है K इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C into molar concentration of D divided by molar concentration of A into molar concentration of B। अब देखिए, अब यहां पे आप एक चीज याद रखेंगे, आप इसको K भी लिख सकते हो और इसको KC भी लिखते हैं। आप कभी कभार इसको K लिखो या डियर स्टूडेंट्स KC लिखो। KC इसलिए बिकॉज आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन किया है, दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसको Kc भी लिख सकते हो। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and this equilibrium constant is basically the ratio of two rate constants. We can call it as simply as K or we can call it as Kc because you are expressing it in terms of molar concentration. Now what is this and this? What are these? C is the molar concentration of product C at equilibrium. D is the molar concentration of product D at equilibrium. A is the molar concentration of A left at equilibrium and B is the molar concentration of reactant B at equilibrium. So these are the concentrations of the substances involved, reactants and products, my dear students, लेकिन at equilibrium। तो अब अगर आपको इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को डिफाइन करना होगा तो कैसे करोगे? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट may be defined as the ratio of the molar product of the molar concentration of products to the molar concentration of reactants। सबको समझ आ रहा है ना? तो देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, द रेशियो का मतलब है डिवीजन, रेशियो का मतलब है डिवीजन, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, इसका मतलब इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। The ratio of the product of the molar concentration of products to the molar concentration of reactants is constant and that is known as equilibrium constant। दूसरा तरीका डिफाइन करने का क्या है? That the product of the molar concentrations of products, the product of the molar concentration of products divided by the product of the molar concentration of reactants for a particular reversible chemical reaction is constant at equilibrium and that constant is known as equilibrium constant, my dear, which you can simply write as K or you can write it in the form of Kc। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मैंने दिखाया। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसका मतलब है एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पे एक
क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, एंड दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो दिस क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मैं आपको ऑलरेडी 1000 बार सिखा चुका हूं कि इक्विलिब्रियम पे एक तो दो रेट्स इक्वल होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड द नंबर सेकंड थिंग इज दैट at that point of time means that equilibrium, there are some parameters which remains constant. One is the equilibrium constant, and basically equilibrium constant is represented in terms of molar concentration of products and reactants. Since their concentration remains constant, so this has to be automatically constant as well. यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, एक और, आई होप आपने ये चीजें जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हो. बेटर है कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखें आप इसको डाउनलोड करके देखें, सो दैट अगर आपको एक बार समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीटेडली देख के नोट डाउन करके समझ सकते हो. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो मैं आपको ये इक्विलिब्रियम सिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफ. व्हाट इज दैट ग्राफ? सी, अब अगर आप एक यही प्रोसेस लेंगे जो मैंने अभी आपको कहा, एक जनरल रिएक्शन थी, दैट मींस A प्लस B गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड C प्लस D. A प्लस B गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड C प्लस D. और इस इक्वेशन को क्या कहोगे? दिस एक्सप्रेशन या इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम. This expression represents the equilibrium constant. This expression represents the equilibrium constant in terms of molar concentration. In terms of molar concentration of reactants and products. In terms of molar concentration of reactants and products. Of course, at equilibrium, and this will definitely remain constant, my dear students. So this is an expression for equilibrium constant. अब यहाँ पे मैं एक चीज, और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये तो पॉइंट नंबर 1 था. पॉइंट नंबर इसका 2 ये है that at fixed temperature, comma Kc बोला या K बोलो, एक ही बात है. Kc is constant. At fixed temperature Kc is constant. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, larger the value of Kc, जितना इस Kc का वैल्यू ज्यादा होगा, greater has been, या greater में अब यहां पे टेंसेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा, larger the value of Kc, greater is the extent of reaction, before equilibrium is reached. ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा अभी. पहली बात मैंने क्या कहा, that this expression जो है it represents the equilibrium constant in terms of molar concentrations of reactants and products, of course in the ratio form. Second, at fixed temperature, एक fixed temperature पे Kc fixed होगा, because मैं आपको already बता चुका हूं fixed temperature पे Kf भी fix होता है और Kb भी fix होता है, और K भी कह सकते हो, आप Kc भी इसको भी कह सकते हो. जब ये दो वैल्यूज ही फिक्स्ड है, और इसका मतलब ये Kc ऑटोमेटिकली फिक्स होगा, उसी का मतलब है दैट फिक्स्ड टेम्परेचर पे Kc का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वो फिक्स्ड रहेगा. तीसरी बात जो क्या है इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट जितना इस K का वैल्यू ज्यादा होगा, खुद ही समझो ना, इस Kc का वैल्यू अगर ज्यादा है, इस Kc का वैल्यू कब ज्यादा होगा, जब न्यूमरेटर में टर्म ज्यादा होगी कि डिनोमिनेटर में. अगर ये वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है ये ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है. और आपको पता है ये क्या है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स है, आपको पता है ये प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स कहां पे बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्टेंट्स से. इसका मतलब है अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स बने हैं रिएक्टेंट्स से बिफोर की इक्विलिब्रियम आया है, यानी कि इक्विलिब्रियम आने से पहले अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स बने हैं,
रिएक्टेंट से। तो ज्यादा प्रोडक्ट्स जब बनेंगे तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर में टर्म आती है, तो जब प्रोडक्ट्स ही ज्यादा बने तो ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है दाएं नीचे वाले से, तो जाहिर सी बात है उस टाइम वैल्यू ऑफ के भी ज्यादा होगा। तो वो ही मैंने यहां पे लिखा, लार्जर द वैल्यू ऑफ के सी, जितना के या के सी का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ के सी, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि प्रोडक्ट्स जो बने, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बने हैं बिफोर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यानी कि इक्विलिब्रियम रीच करने से पहले रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी ज्यादा हुई, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। So these were the important conclusions from this expression. And third thing, the same I will explain in terms of a graph. So इसको मैं erase करता हूं। मैं फिर से आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आपने इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट की तो माय डियर स्टूडेंट्स उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैक्सिमम थी, उस टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी मैक्सिमम थी, उस टाइम रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की जीरो थी और उस टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी जीरो थी। देखो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, देखिए चेक कीजिए, देखिए यहां पे मैं लिखूंगा ये कोऑर्डिनेट जो है, ये मैं लिखूंगा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, इनकी रिएक्शन प्रोसीड्स दिस वे, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, या ऐसे लिखेंगे प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो मैं इस एक्सिस से दिखाऊंगा। अब यहां पे देखिए क्या दिखाऊंगा, देखिए ये बीच में मैं एक लाइन जो है ड्रा करूंगा यहां पे, दिस लाइन जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई, ये इक्विलिब्रियम स्टेट, ये यहां पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। और आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे माय डियर स्टूडेंट्स चेंजेस नहीं होती है। बस हाँ एक चीज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम इज नॉट स्टैटिक, but there are two processes which are going on at an equal rate, means the equilibrium has attained. There are certain parameters whose value is constant, right? You have seen the mixture remains constant, equilibrium constant is constant, but the two processes are going at an equal rate, and we call that the equilibrium is, my dear students, dynamic in nature. ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं होता है, सिस्टम में दो प्रोसेसेस होती है जो अपोजिट में होती है और उनकी रेट लेकिन इक्वल होती है, यानी कि प्रोसेस रुकी हुई नहीं होती, इसलिए उसको डायनेमिक कहते हैं, इसका मतलब चेंज है। चलिए यहां पर बताइए पहले इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, मैं यहां पे लिखता हूं, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन मतलब 0। बताओ मुझे पहले कौन सी रेट ज्यादा थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन? रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा थी, ज्यादा वैल्यू नीचे है कि ऊपर है, तो ऊपर वैल्यू आप देखो जितना ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले थी, सपोज मैं यहां पे लेता हूं, वो ज्यादा थी, और उस टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 थी। समझो बात को, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली ज्यादा थी बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैक्सिमम थी, लेकिन उस टाइम प्रोडक्ट्स बने नहीं थे, उस टाइम और यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट, तो ये जो है आपको ये एक्सिस जो है ये आपको रेट के बारे में बताती है, and this is the proceeding of reaction. Now see, initially rate of reaction forward reaction is maximum, this is RF, and rate of backward reaction उस टाइम 0 थी, तो जब 0 थी rate of backward reaction तो मैंने वो यहाँ पे दिखाई R भी 0, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम थी, वो मैंने यहाँ पे दिखाया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब कम होगी बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होगी, लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगेगी बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो ये डाउन, ये नीचे जाएगा ऐसे, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये तो बढ़ेगी बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रही, और ग्राफ ऐसा है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट, अब मैंने लाइंस को बराबर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी डिफरेंस यहां पे रखी। इसका मतलब ये हुआ दैट RF, व्हाट इज RF, व्हाट इज RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज डिक्रीजिंग, देखिए ये डिक्रीज हो रही है,
rate of forward reaction is decreasing. Check कीजिए, ये decrease हो रही है. Why it is decreasing? Because the concentration of reactants is decreasing with the passage of time. While the rate of backward reaction, देखिए RB में लिखूंगा rate of backward reaction, it is increasing, my dear students. It is increasing. The rate of backward reaction is increasing. और देखिए यहाँ पे rate of backward reaction increase हो रही है. यानी कि इसका डिक्रीज होना और इसका इंक्रीज होना, और एक टाइम ऐसा आता है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, जहां पे माय डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, that means this becomes equal to the rate of backward reaction, and we called that state as equilibrium state, and we say that the equilibrium has been attained, my dear students. So this was the concept of equilibrium that I have understood in terms of reversible chemical processes, and we call that equilibrium as chemical equilibria. It is a simple understanding, means when the equilibrium is established in the reversible chemical process, we call that as chemical equilibrium. And while understanding this chemical equilibrium, I have make you understood this through the graph as well. Means, and at equilibrium, the two opposite processes, means rate of forward reaction and backward reaction, they are equal. Of course, they are equal, but they are going opposite to each other at an equal rate, and that's why we said equilibrium is dynamic in nature, and we have given you the concept of equilibrium constant by utilizing the concept of chemical equilibrium. And one more important thing that you want to understand is that at equilibrium, whatever will be the concentration of reactants and products at equilibrium, whatever it is, it will remain, my dear students, constant. It will not change when the time is changing. That means that the concentration, the molar concentration of the reactants and the products at equilibrium, we call that as equilibrium mixture or equilibrium concentration. That doesn't change at equilibrium, but the two processes which are going opposite to each other, means the rate of forward process and the backward process at equilibrium, they are opposite to each other, but they are going at an equal rate, and so the equilibrium is dynamic in nature. So this was the general example. If I am going to give you now the actual example of any particular chemical reaction, so let us discuss it. See, I will erase this. This is a very simple concept. It's not so tough. See, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो आप याद रखिए, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल, मैं आपको एक और जनरल एग्जांपल पहले दूंगा, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखूंगा. पहली बात, एट इक्विलिब्रियम देखिए, नंबर वन, certain parameters which are measurable, certain parameters remain constant. What do you mean by remain constant? That is, they do not change with the passage. They do not change with the passage of time. This is point number first. Number second is rate of forward reaction is equivalent to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. And number third is that the concentration, rather the molar concentration of reactants, the molar concentration of reactants and products, at equilibrium, that is already understood because we are discussing at equilibrium,
the molar concentration of reactants and the products at equilibrium remains constant. वो जो भी होगी उनकी concentration my dear students वो constant रहेगी. Remain is constant means remain is fixed, ये change नहीं होगी. And is known as, और उसको हम कहते हैं and is known as equilibrium, and is known as equilibrium concentration, या उसको हम equilibrium mixture भी कहते हैं. इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. और ये जो भी होगी ये फिक्स्ड रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी. और इनके कांस्टेंट रहने से फिर क्या कांस्टेंट रहता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc. और इसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है एट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये मैं आपको समझा चुका हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये रहता है. So this was the general overview of the concept of equilibrium in the reversible chemical processes, and we call that as a chemical equilibrium. So my dear students, this was lecture number 5. So far I have just a while ago I have told you that we are going to do certain examples, but I think that the best will be that we are going to do the examples in the next video lecture. Until then you practice this video lecture thoroughly. You write it down on your notebook, and inshallah we are going to meet in the next video lecture number 5. This unit will be continued, means the chemical equilibrium will be continued, and now this unit is going to be more fascinating than before. Now the very important and interesting things are going to be discussed, and for the NEET and JEE students there will be the numerical problems and other things which will be discussed as well. And मिलते हैं इंशाल्लाह इन वीडियो लेक्चर नंबर 6. टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.